Bismillahirrahmanirrahim. I am Nuruddin Sheikh, Associate Professor, English, in charge Principal Government Degree College, Sarai Pyaro Khan, Talka Kodeji, District Khairpur. As per directives by Honorable Minister for Education, Syed Ghani Sahab, and worthy Secretary Colleges, that due to this position, lockdown position throughout the world and especially in Sindh, we have to stay at home for our safety. During this period, our institutions, colleges, schools are suspended till further order. I think mostly our teachers have completed courses, but few of them are in that position that they have to complete their courses through online, and Secretary Education has started this program for those students who are in need, who have need to complete their courses. So today, as per my subject, I have completed the course, but few people, few students, guys contacted me mobile phone, that especially the student of class first year, they told that we are in confusion that how will be the exam and what are the questions, how we have to attempt these questions. So in this regard, I especially for those students that do not know the examination pattern, I'll guide them now. So first of all, English first year, divided in three parts. First, the first book is Intermediate English Book 1, Prose. Number 2, Selection from English Verse. Poetry. Number 3, plays, drama. These three books are recommended for class first year, and in the examination paper, in annual paper, the paper setter has to select questions from these three books. How the paper setter sets paper?
it is a scheme. It's a just like a given schedule to select the questions from these 3 books. Annual paper of English, 100 marks. And everyone student will be given 2 papers. First paper starts from 9 a.m. to 11:30. In first paper, the questions are 2 types. 2 types questions. Number 1, short answer questions. Short answer questions. In short answer questions, every question carries 5 marks. Every question is equal to 5 marks. And total questions are 15, in which 5 questions from each section, 5 questions from each book, 5 questions from intermediate English book 1 prose, 5 questions from selection from English verse poetry, 5 questions from drama. And every student has to attempt 3 questions from each section. There are 3 sections. Every section contains 5 questions, and every student has to attempt at least 3 questions from each. And remaining 1 question, it's up to his discretion or her discretion to select from any section. It means every candidate, every student has to attempt 10 questions from short answer questions. Now the second part of first paper, second part of first paper, long answer questions. Long answer questions. This questions carry 10 marks, and total questions are 3, but in 3 questions every candidate will be given
choice option for selection the answer. So number 1 question, essay writing. Or character from drama. Question number 1, long question, essay writing. One essay will be given, or a student has option write essay or write a character of drama. Number 2, application or letter. Application writing or letter writing. One letter will be given or one application will be given for the students. And it's not necessary that sometimes the paper setter will set as will direct as to write application or letter. But in that option, there is an option or write story, because during our session we will give the 10 to 15 stories to the students, just like united we stand, just like union is strength, just like honesty is best policy, just like tit for tat, just like all that glitter is not gold. These type of stories, and this story also can carry 10 marks. It is on the option of second question. The second question, a student have to write application or have to write story. And question number 3, do as directed. This question is composition, English grammar. In this question, candidate will be given 10 sentences grammar. Number 1, correct the sentence. Number 2, change narration. Number 3, change voice. Number 4, use appropriate preposition. Number 5, use appropriate article. Number 6, use
proper verb position. Number 7, remove to. These types of sentences will be given, and as per direction, the candidate has to write correct answer, correct sentence. Okay? And each sentence will carry half mark. It means total marks are 5. This is question 3, but A. Now B. B. Translation. Five translation, the candidate will say in Sindhi or in Urdu 5 sentences for translation, and everyone has to translate these sentences into English. Translate into English. The major portion of the paper now is completed. It means total marks 80 marks now completed. And the time consumed 2.5 hours from 9 a.m. to 11:30. Now, the candidate will be given at that time at 11:30 the next paper for MCQs. The second paper is MCQs. Multiple choice question. Multiple choice question. These are only 20 questions. How many? 20 questions. Each question can carry 1 mark. And in this question, a student will be given 3 to 4 options, A, B, C, D. 4 options, and from those 4 options, every candidate has to choose the correct answer, right answer, and put the right answer. It is not necessary for students to write full sentence, no, not at all, but only he or she has to write correct choice, correct answer, correct word, correct figure from the 4 options. And this type of the second paper, the MCQs paper is printed in 4 codes. Code A, code B. Questions are same but reshuffled in series, in sequence. Questions are same but sequence is changed. And it is not necessary that all the students will be given the code A. No, one student will be given code A, and second will be given code B, and third will be given code C, and fourth will be given code D. So it is only for that the students cannot cheat with each other.
and everyone has to write the answer from own mind. Okay, so this is the pattern of English paper, especially those students who are in first year class. They are in confusion how the paper will be given to us, what type of the questions are there, and marks allocated. So this is a pattern, this is a way in which we can guide you that the total paper is of 100 marks, and in which 50 marks on short answers question and 30 marks on long answer question and 20 marks on multiple choice questions and MCQs. मैं आपको अभी थोड़ा, क्योंकि कुछ हमारे जो तलबा हैं वो इंग्लिश को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ रिमोट एरियाज़ के बच्चे भी हैं, उनको थोड़ा मैं उर्दू में भी समझाना चाहता हूँ कि भाई आपको जो फर्स्ट ईयर का पेपर दिया जाएगा उसमें पहले आपको एक पेपर दिया जाएगा 9 बजे। उसमें आप देखेंगे ऊपर से कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम 15 क्वेश्चंस, यानी 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 10 के जवाब देने हैं और उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। एक सेक्शन में आपका प्रोज जो है, इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 जो है, उनमें से सवालात होंगे, और उसके बाद सेक्शन 2 जो होगा वो पोइट्री का होगा, उसमें भी 5 सवालात होंगे, आपको 3 के जवाब देने हैं। और नंबर 3 जो होगा वो सेक्शन ड्रामा का होगा, उसमें भी 5 सवालात होंगे, उसमें से भी आपको 3 जवाब देने होंगे, यानी आपके 50 मार्क्स का ये पोर्शन पूरा हो गया। आपको 10 जवाब देने हैं, ये तो 9 हो गए। एक कहाँ से जाए, एक आपकी मर्जी है, जिस भी सेक्शन से आपको सवाल का जवाब आ जाए आप वो लिख दें, यानी आपके 10 सवाल पूरे हो गए, आपकी 50 मार्क्स पूरी हो गई। उसके बाद दूसरा उसमें जो पोर्शन होगा वो होगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, यानी लंबे क्वेश्चन। उनमें एक ऐसे होगा, ऐसे के साथ अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आपको जो आपने ड्रामा पढ़ा है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसी में किसी न किसी कैरेक्टर के ऊपर लिखना होगा कि उसने कैसा कैरेक्टर यहाँ इस ड्रामे में रोल किया है, उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा एप्लीकेशन या लेटर। कभी कभी हम एप्लीकेशन देते हैं बच्चों को लिखने के लिए, कभी कभी हम लेटर देते हैं कि भाई ये अपने बाप को, अपने भाई को, अपने दोस्त को खत लिखें। कभी कभी हम एप्लीकेशन लिख देते हैं कि भाई सेक्रेटरी साहब को एप्लीकेशन लिखें ताकि आपको अपॉइंट किया जाए, फलां डायरेक्टर को एप्लीकेशन लिखें ताकि आपकी अटेंडेंस शार्ट है वो पूरी हो जाए। यानी कोई भी मसला हो उसी बुनियाद पे एक एप्लीकेशन होती है और वो बच्चों को हम सिखाते हैं क्लासेस के दौरान। बाकी नंबर 3 क्वेश्चन जो है उसमें ग्रामर का होता है, कंपोजिशन होती है, और इसमें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए, लिहाजा जो बच्चे पढ़ते हैं ये वही ग्रामर है जो आप 7वीं क्लास से लेके फर्स्ट ईयर तक पढ़ते आए हैं, यानी उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चे को आना चाहिए। उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें उसमें थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, भाई इसको करेक्ट करें, सेंटेंस करेक्ट करके आपको लिखना है। उसके बाद नरेशन है, उसके बाद वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके हम जुमले देते हैं। उसमें रिमूव टू है, उसमें एक या 2 आपको प्रीपोजिशन डालनी होती है कहीं, और कुछ एक या 2 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको
आर्टिकल डालनी होती है, प्रॉपर आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल पड़ेगी, इनडेफिनेट आर्टिकल पड़ेगी, कौन सी आर्टिकल आएगी। तो इस तरह से ये 10 सेंटेंस आपको मिलेंगे, 10 सेंटेंस आपको करने हैं, ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये याद करना। ये नहीं है कि इसको छोड़ना है, इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपको लाजमी करना होगा। उसके बाद ये इसका एक सेक्शन है, 10 सवालात होंगे, आपको 5 मार्क्स मिलेंगी, बाकी 5 मार्क्स आपको ट्रांसलेशन की है। सिंपल सी ट्रांसलेशन हम देते हैं, उसमें आपको वो अटेम्प्ट करेंगे, हर ट्रांसलेशन सही करने पर आपको 1 मार्क मिलेगी। यानी आपका ये पेपर, एक पहला पेपर जो है वो पूरा हो गया। अब आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा 11:30 बजे, इसलिए मैंने कहा कि 10 मिनट तो प्रिपरेशन होती है, बाकी एक सवाल पे 1 मिनट आपको दिया जाता है। यानी 20 सवालों के आपको 20 मिनट मिलेंगे। वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 4 जवाबात दिए जाएंगे, उसमें एक सही होगा, चारों में से एक सही होगा। जो भी सही जवाब है आप उस सवाल का नंबर लिखें। फ़र्ज़ करें कि आपने नंबर 1 अटेम्प्ट किया है, नंबर 1 के 4 जवाबात आपके सामने हैं, उसमें जो भी सही जवाब है आप सिर्फ वो सही जवाब ही लिखेंगे, बाकी पूरी लाइन आप नहीं लिखेंगे। तो उसी तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका पेपर भी पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि काफ़ी हमारे बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि सवालात तो सिर्फ इस बुक में आते हैं जो इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 है। इसकी एक्सरसाइज में हर सबक के पीछे 10 सवालात होते हैं और बच्चे वो याद करते हैं। जब इम्तिहान में बैठते हैं तो उसी में एक भी नहीं होगा। ये क्या माजरा है? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेपर सेटर, अब ये वो बात चली गई, वो दौर गया जब हम यही देते थे और बच्चे जो है ना वो सारी रटाफिकेशन करते थे, मेमोरी करते थे, याद करते थे, फिर वो आके लिखते थे। लेकिन अब ये है कि पूरे सबक में से हम कहीं से भी कोई सवाल अपना बना के वहाँ लिख देते हैं और आपको कहते हैं भाई इसका जवाब दो, क्योंकि आपने पूरा सबक पढ़ा है और ये आपकी ज़हानत का इम्तिहान है कि आपको पूरी टेक्स्ट को पढ़ना है। अगर जिस बच्चे ने इस किताब को पूरा पढ़ लिया है तो वो तो कर देगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको जवाब आना नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 10 सवाल हर इसके सबक के पीछे ये 10 सवालात हैं। और ये 10 सवालात आप कभी कभी ऐसा होता है यहीं से भी हम सवाल बना के देते हैं, 2-4 सवाल मिक्स करके हम एक अच्छा सवाल बना के देते हैं। लेकिन ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं, और ये इसी में आपको इसी बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसी पे जोर दे रहा हूँ कि अक्सर व बेशतर बच्चे इसी सवालों के जवाबात अपने गाइड से, अपने किसी सॉलिड पेपर से, अपने किसी नोट से याद करके और इम्तिहान में आकर बैठ जाते हैं और तब पता चलता है कि यहाँ से एक सवाल भी नहीं होगा। तो मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि जैसे आपको मैं बताऊँ, एक यहाँ लाइन है, बिर्केनहेड ड्रिल, विमेन एंड चिल्ड्रेन फर्स्ट। अब मैंने ये लाइन लिख दी, मैंने सवाल किया है कि भाई ये किसने कहा। मैंने खुद सवाल बनाया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, हु सेड दीज लाइन्स। यानी इस टाइप के क्वेश्चन हम पूरे टेक्स्ट से बनाते हैं। जब टेक्स्ट पूरा हो जाएगा तो आपका सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसी तरह ये जो पोइट्री का किताब है, पोइट्री में तो कोई सवाल नहीं होता, पोइट्री के सवालात तो होते नहीं। आप कहेंगे यहाँ के सवालात कहाँ से आए? भाई ये है कि हम इससे भी सवालात बनाते हैं। फ़र्ज़ करें ये पहला पोएम है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ए सॉन्ग एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। अब मैंने पूछ लिया भाई विलियम शेक्सपियर का कौन सा पोएम हमने पढ़ा है। जब आपने पढ़ा होगा तो आप फ़ौरन कह देंगे कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री
एज यू लाइक इट। तो इसी वजह से हमने इसमें से भी सवालात बनाए हैं, और कभी कभी हम ये भी करते हैं, इनकी 2 लाइन दे देते हैं, भाई इनको एक्सप्लेन करें, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन है ना। शार्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि जवाब आपका 3 to 5 लाइन्स होना चाहिए, 3 से 5 लाइनों का जवाब होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं वो शार्ट क्वेश्चन को भी 1 पेज 1.5 पेज के सवालात के जवाब देते हैं। ये गलत है, ये अपना टाइम ज़ाया करते हैं। उनको मैं ये कह दूंगा कि भाई टू द पॉइंट जवाब दें, जो आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दें। ये ना हो कि आपने शार्ट क्वेश्चन को समझा ही नहीं, आपने शार्ट क्वेश्चन को लॉन्ग कर दिया, अपना टाइम ज़ाया कर दिया। आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, जवाब देने हैं, आपने 5 दे दिए, टाइम पूरा हो गया। तो खुदारा सवालात को समझें, उसकी नौयत को समझें। ये कि शार्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, इसमें आपका जवाबात जो आना चाहिए 3 से 5 लाइन का होना चाहिए, 6 लाइन का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब जवाब आ जाए तो बात ख़त्म। तो इसलिए पोइट्री के सवालात भी हम जो देते हैं उसमें आपको पोइट्री में देखें कि भाई इस पोएम के पीछे इसका असल वजह क्या है। देखिए ये पहला पोएम है, इसमें हर पोएम के पीछे उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी होती है कि भाई इसमें ये कहाँ से लिया गया है, ये पोएम कौन सी ड्रामा में गाया गया है, इसमें असल हकीकत क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था। हम कभी कभी वहाँ से सवाल देते हैं। तो मैं आपको ये भी गाइड करना चाह रहा हूँ कि जब आप पोइट्री का किताब ले लें, इसमें 10 पोएम आपको पढ़ने हैं, इनके पीछे जो नोट्स लिखे हुए हैं उनको भी ज़रा देख लीजिएगा। उनमें से सवालात होंगे जो आपको जवाबात देने पड़ेंगे। ये ना हो कि आप कहें कि हमने पोइट्री तो पढ़ी है लेकिन ये सवालात तो हमने पढ़े नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपको इस सवालात के जवाब भी इस तरह देने होंगे। और उसके अलावा ड्रामा है। अब तीसरा पोर्शन है हमारा ड्रामा, 2-1 एक्ट प्ले। इसका मैं थोड़ा ये भी बता दूं आपको कि 2-1 एक्ट प्ले है क्या। ये इसको 2-1 एक्ट प्ले क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें 2 अलग अलग ड्रामे हैं, एक प्रोग्रेस है, एक द काउंट्स रिवेंज है। ये 2-1 एक्ट प्लेस, ये नाम लिखा हुआ है किताब में। तो इसका मतलब यह है कि 1 एक्ट के 2 प्लेस, यानी जो इसमें प्लेस हैं 2 वो 1 एक्ट के हैं, सिंगल एक्ट प्लेस हैं, बड़े नहीं हैं, उसमें एक्ट सिंगल है। हर प्ले में डिफरेंट एक्ट भी होते हैं, 2, 3, 4 एक्ट भी होते हैं, और हर एक्ट में डिफरेंट सीन होते हैं। ये एक लिटरेरी बात है, आपको हमने समझाया है क्लास में भी कि ये प्लेस जो हैं 2-1 एक्ट प्ले, यानी सिंगल एक्ट के, ये सिंगल एक्ट के 2 प्लेस हैं। एक है द काउंट्स रिवेंज और नंबर 2 है प्रोग्रेस। ये 2 प्लेस हैं इसमें, ये दोनों सिंगल एक्ट के हैं। इसमें सीन है, किसमें 3-4 सीन है, किसमें 2 सीन है, किसमें 3 सीन है। ये सीन अलग है लेकिन इसमें एक्ट एक ही है, सिर्फ एक्ट काउंट का रिवेंज है जो उसने ले लिया। ये प्रोग्रेस है, इसमें एक साइंटिस्ट है जो बॉम्ब को बना रहा है, जिसमें उसकी बहन ने उसको मना किया, वो बाज नहीं आ रहा था तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यानी ये 2 प्लेस हैं छोटे और उसमें सिंगल एक्ट के प्लेस हैं। ये बात समझनी चाहिए। अब ये है कि इसके सवालात भी हम इनके अंदर से बनाते हैं कि भाई ये काउंट्स रिवेंज, ये इसमें हीरो कौन है, उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, या इसमें विलेन कौन है, उसका किरदार, यानी उसके 2-4 ऐसे आप उसकी कैरेक्टर्स बताएं जो जिसकी वजह से हम उसको विलेन कह रहे हैं। यानी इस तरह से सवालात हम करेंगे। जब आपने ये पूरा पढ़ा होगा, जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी,
तो आप जवाब दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये थारोली आपको पढ़ना चाहिए। प्रोग्रेस भी पढ़ेंगे, इसमें भी जो कैरेक्टर्स हैं, इसके पीछे जो स्टोरी है, इसके पीछे जो स्टोरी है, हम उनसे भी सवालात करते हैं। ये कब लिखा गया, किसने लिखा, कहाँ लिखा, कौन सी जगह थी, इसमें कौन कौन से मेन किरदार थे, यानी ये सब आपको पढ़ने चाहिए। आपके सवालात यही होंगे। बाकी जो MCQs हमने बनाए हैं, जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस के, उसी में भी इन 3 जो आपके बुक्स हैं वहाँ से ही हमने सवालात लिए हैं। ये नहीं है कि वो सवालात कहीं और से आएंगे, नहीं, आपके कोर्स से सवालात होंगे। आपके इस 3 बुक्स में सवालात होंगे, बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा। लेकिन इसमें कुछ सवालात ये हैं कि आपको मेमोरी वाले हैं, कुछ सवालात आपको अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, कुछ सवालात आपको यानी आप जो क्वेरीज वाले हैं वो होते हैं। यानी आपने अगर याद किया है तो वो भी जवाब आ जाएगा, अगर आपको आपके जहन से हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं वो भी सवाल होंगे। तो इस तरह आपको मैंने आपको ये बताया कि आप परेशान ना हो, पहले स्टडी करें, अपने तीनों बुक को स्टडी करें, थारोली उस टेक्स्ट को पढ़ें। जब आपने टेक्स्ट पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन करें, दोबारा रिवीजन करें। आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। इसी अल्फाज से मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।